Hello friends, this is Sonu Rathor, and this is your geography teacher. Today we are going to start our first chapter of our second part of the book, geography second part of the book, population, distribution, density, growth and composition. This is the first chapter of our new book. First book already we have finished, and this is the second book, and very first chapter we are going to start population, distribution, density, growth and composition. Okay, my dear students, population plays a very vital role for the country. It plays a very important role for the country. That's why you may have often heard to the governments regarding population, and news channels you might have heard that population of such and such way is increasing day by day, and it is making a huge disaster for us. So these kind of things you might have heard. Okay, now let's talk about population, distribution, density, growth and composition. Okay, the complete chapter is about population, and as soon as we have a look on the title of the chapter, there is a word distribution. Distribution means, it is a very simple word, distribution. It means how the population is distributed in different areas, different parts. Okay, we will go through the chapter through these topics. These topics we have. First topic, so topic by topic we will move forward to the chapter. Topics we have: distribution of population, density of population, growth of population, population composition, and subsections are rural urban composition, linguistic composition, religious composition and composition of working population. So through these topics we are going to analyze, or we are going to understand this chapter. So step by step we will move forward. Dear students, in this chapter facts are there. Basically this chapter is about facts. Facts we need to understand. Some facts are there that we need to understand. Facts दिए गए हैं चैप्टर के अंदर, और facts की हम बात करेंगे यहाँ पर. Okay, let's start the chapter. My dear students, you might have heard the word census. Census क्या होता है? Census is done by our government, central government. After every 10 years, census is done by the government. हमारी गवर्नमेंट के द्वारा सेंसस किया जाता है, जनगणना की जाती है. उसके अंदर पूरी कंट्री की हम जो है पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, सेंसस करते हैं, जनगणना करते हैं. ओके, सो इट टेक्स प्लेस आफ्टर एवरी 10 years. फर्स्ट सेंसस वाज देयर इन 1872. सबसे पहला सेंसस 1872 में हुआ था. देन आफ्टर, ओके, एंड बट दिस वाज नॉट द कंप्लीट सेंसस. ये कंप्लीट सेंसस नहीं था. फर्स्ट कंप्लीट सेंसस की अगर बात करें तो इट टुक प्लेस इन 1881. 1881 में फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था. 1872 वाला कंप्लीट सेंसस नहीं था. ओके, चलिए, वेरी फर्स्ट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है ना, कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, किस तरह से हुआ है. ओके, you might have heard कि somewhere that this and this state has more population density, this and this state has more density.
यू माइट हैव हर्ड सो मेनी टाइम्स, है ना. सो देखा होगा आपने कि कहीं पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो कहीं पर बहुत कम लोग रहते हैं, है ना. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट इवन इन आवर कंट्री. इट इज़ नॉट इवन इन आवर कंट्री. क्या ऐसा है? क्या सब जगह बराबर बराबर पॉपुलेशन रहती है क्या? नहीं. पॉपुलेशन सब जगह पर अनइवन है. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है. ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है ना. यू माइट हैव हर्ड अबाउट कि यूपी पॉपुलेशन के पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले आता है नाम यूपी का, महाराष्ट्र का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का. दीज स्टेट्स हैव मोर पॉपुलेशन. यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है. ओके. एंड ऑन द अदर हैंड some states are there that they have very less population. They have very less population. For example, Jammu and Kashmir has 1.04% population. Only 1.04% population Jammu and Kashmir have. Uttarakhand we have 0.84% we have. Arunachal Pradesh 0.11% पॉपुलेशन वी हैव. सो ये जो परसेंटेज है ये किसका परसेंट है? ये परसेंटेज है इंडिया की पॉपुलेशन के रेफरेंस में. इट मींस इफ 100% population is living in India, then out of 100%, 1.04% in Jammu and Kashmir, 0.84% in Uttarakhand, and 0.11% in Arunachal Pradesh lives over there, है ना. यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन रहती है. सो you might be wondering that instead of having such a large geographical area, such a big states, big area, the percentage or the ratio of the population is very less. You might be wondering, है ना. आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों होता है, इतना बड़ा स्टेट होने के बाद भी, इतना प्लेस होने के बाद भी इतने कम लोग क्यों यहाँ पर रहते हैं. You might be having a question in your mind, or you might be wondering of this fact, है ना. It's very surprising. So let's find out what are the reasons behind these facts, why the population is very less in these states. Okay, let's find out. Here we have factors affecting population distribution. Factors affecting population distribution. What are the factors that affect the population distribution, है ना. ऐसा क्यों होता है कि कहीं पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर पॉपुलेशन बहुत कम है ना. सो हियर वी हैव द फैक्टर्स दैट डिसाइड्स द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना. Here we have the factors that affect the population distribution. The very first, physical factors. Physical factors we have. Physical factors affect the population distribution. How can physical factors affect the population distribution? Suppose if the relief features of that place is not suitable. Relief features means land, है ना. Land areas, if the relief features is not suitable, just like land areas, okay, land or climate, if they are not suitable, then what would happen कि वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे. फिजिकल फैक्टर्स लैंड आ जाएगा, क्लाइमेट आ जाएगा और रिसोर्सेज आ जाएगा. लैंड, लेट मी राइट, लैंड, क्लाइमेट, और यू कैन ऑल्सो काउंट रिसोर्सेज. ओके.
physical factors. Okay, if these physical factors are not suitable for the dwelling of the people would not like to go over there. वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करेंगे. क्या करेंगे? क्या ऐसी जगह पर जहाँ पर लैंड अच्छी नहीं है, लैंड फर्टाइल नहीं है, लैंड उबड़ खाबड़ है, क्लाइमेट वहाँ का एक्सट्रीम है ना, बहुत ज़्यादा या तो वहाँ पर गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना, और रिसोर्सेज नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, वाटर नहीं है, फिशिंग नहीं है, रिवर्स नहीं है ना. इफ़ दीज काइंड ऑफ फैक्टर्स आर देयर, अगर वहाँ पर इनकी लैकिंग है, कमी है, तो फिर वहाँ पर पॉपुलेशन आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी. नेक्स्ट वी हैव सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स. सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ द प्लेस also affect the distribution of the population, also affect the density of the place, density of the population. Socio-economic factors. Socio-economic factors means economic factors means job opportunities. Socio factors means society, है ना, how is the society of that place, है ना. ऐसी जगह पर कोई जाना पसंद नहीं करता जहाँ पर कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है ना, सोशल एनवायरनमेंट सही नहीं है, सोसाइटी सही नहीं है ना, क्राइम रेट अगर वहाँ पर ज़्यादा है तो वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, है ना. सो दीज आर द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स. इफ़ दीज फैक्टर्स आर नॉट पॉजिटिव देन द पीपल वुड नॉट लाइक टू गो. अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप ऐसी जगह पर जाना पसंद करोगे जहाँ पर कि सोशल जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है ना, क्राइम वहाँ पर खूब होते हैं, है ना, इस तरह से. तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी किसी जगह के जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल फैक्टर्स. हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल फैक्टर्स, हाउ the history or the political environment is there in that state or in that place, this also affect the population distribution, है ना. पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे कि उस जगह की गवर्नमेंट स्टेबल है या नहीं है, गवर्नमेंट इज स्टेबल और नॉट, दिस इज, है ना. तो इफ द गवर्नमेंट इज doing well, if the government is stable, then the people would like to go over there and live over there. Okay, this is there. So all these factors, है ना, it is very simple. If all these factors are positive, then automatically the population, the people would like to go over there and live over there, है ना. And you can take example of our northern plains. नदर्न प्लेन्स यू माइट हैव हर्ड कि वहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल है ना. नदर्न प्लेन्स जो है हमारे, वहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल होती है ड्यू टू मेजर रिवर बेसिन्स. तो वहाँ पर डेंसिटी हमको ज़्यादा देखने को मिलती है, लोगों की डेंसिटी हमको ज़्यादा देखने को मिलती है. ओके, चलिए नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड टॉपिक, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. Density of population. Sir, what is density and what is density of population? Density means number of people per unit area. Number of people per unit area means per unit area, है ना. How many people are residing, how many people are living over there on a particular area, per unit area, per square किलोमीटर के अंदर कितने एरिया लोग रहते हैं, उस हिसाब से उसको उसकी डेंसिटी कहते हैं. ओके, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. इफ इन अ वेरी लिमिटेड लैंड एरिया मोर पीपल आर रिसाइडिंग, मोर पीपल आर लिविंग, तो दैट प्लेस डेंसिटी इज कंसिडर्ड हायर, है ना. उस जगह की डेंसिटी हायर मानी जाएगी. अगर कम जगह पर ज़्यादा लोग रहते हैं तो उसकी डेंसिटी हायर मानी जाएगी, और ज़्यादा जगह पर अगर कम लोग रहते हैं तो डेंसिटी उसकी लो मानी जाएगी. ओके, चलिए, तो डेंसिटी ज़्यादा होने के पीछे भी क्या रीज़न हो सकते हैं, यही सारे रीजन्स हो सकते हैं डेंसिटी ज़्यादा होने के पीछे. ओके, जस्ट हैव अ लुक ऑन. जैसे
हम बात करें दिल्ली एनसीआर की, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो हाउ मेनी पीपल आर रिसाइडिंग ओवर देयर? 11,320 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि देखो वहाँ की डेंसिटी कितनी है, 11,320 लोग वहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहते हैं, अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें हम। ओके, ये तो दिल्ली एनसीआर की हमने बात की। नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्टेट्स, दिल्ली इज नॉट ए फुल फ्लैश्ड स्टेट, दिल्ली इज नॉट ए फुल फ्लैश्ड स्टेट, फुल फ्लैश्ड स्टेट हम नहीं कहते हैं ना। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, तो बिहार के अंदर जो डेंसिटी है वो है 1106 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, वेस्ट बंगाल के अंदर 1028 पर्सन्स पर किलोमीटर, यूपी के अंदर 829 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। अब इफ वी टॉक अबाउट यूपी कि सर यहाँ का जो डेंसिटी है वो इतना कम क्यों है? इफ वी टॉक अबाउट यूपीज डेंसिटी देन वी कैन रिमाइंड द फैक्ट दैट बिकॉज ऑफ यहाँ का जो एरिया है ना, एरिया वो बहुत ज़्यादा है, एरिया इज लार्जर, है ना, लार्जर एरिया यूपी हैज़। तो यहाँ पर जो एरिया है वो बहुत ही लार्ज है, दैट्स वाई यहाँ पर इतनी कम डेंसिटी हमको देखने को मिलती है ना। तमिलनाडु 855, अरुणाचल प्रदेश 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। सो ये डेंसिटी होती है, ठीक है। सो सिंपल, लेट मी गिव यू वेरी सिंपल एग्जाम्पल। सपोज नियर बाय योर टाउन, नियर बाय योर विलेज you have a city, है ना। You can take example of Jaipur, you can take example of Kota. So what we people think, what the neighbors, what the residing people of over there, what they think कि हमें what they think कि I want to buy a house, I want to buy a home or I want to reside कोटा और जयपुर, है ना, क्योंकि वहाँ पर बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, है ना, नियर बाय फ्यूचर में बच्चों की एजुकेशन के लिए दिक्कत नहीं आएगी, है ना, सारी फैसिलिटीज़ है वहाँ पर, इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पर, है ना। तो लोग ऐसी जगह पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना, जहाँ पर कि ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिव होते हैं, सोशल इकोनॉमिक, फिजिकल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स जहाँ पर पॉजिटिव होते हैं वहाँ पर डेंसिटी हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, आई होप you got all the points whatever I have explained. If you have any doubt then you can ask in the comment section of the comment section. Okay, bye bye, have a nice day. Okay, now have a look on hill states of Himalayas and northeast states. If we talk about hill states of Himalayas and northeast states, the density is very low, है ना। यहाँ की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है ना, एक्सक्लूडिंग आसाम। हिल स्टेट्स ऑफ हिमालयाज एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की डेंसिटी बहुत ही कम देखने को हमको मिलती है, एक्सक्लूडिंग आसाम, यानी कि आसाम को छोड़कर, है ना, आसाम को हम इंक्लूड अगर नहीं करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट, यूनियन टेरिटरीज। इफ वी टॉक अबाउट द डेंसिटी ऑफ यूनियन टेरिटरीज देन द डेंसिटी इज हायर, द डेंसिटी इज हायर इन यूनियन टेरिटरीज एक्सक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार को छोड़कर। ओके, why the density is higher and why the density is lower in these states? Due to of that factors that influence the density and population of the area, जो हमने वहां डिस्कस किए थे। ओके, आगे बात करते हैं physiological density. If we want to know the physiological density of the place,
then what we have to do, this is the formula, total population net divided by net cultivated area, total population divided by net cultivated area, ये formula है. Next we have agricultural density. Agricultural density formula है total agriculture population divided by net cultivated area. ठीक है, याद रखिएगा इनको, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, है ना. If we want to know agricultural density, then what we have to do, total agricultural population divided by net cultivated area से उसको divide कर देते हैं. Okay, now sir, what is total agriculture population? So agriculture population में हम किसको लेंगे, total agriculture population में हम किसको लेंगे, total agriculture population में हम cultivators आ जाएंगे, next agricultural laborers आ जाएंगे. Okay, नेक्स्ट इन दोनों की जो फैमिलीज हैं, कल्टीवेटर्स प्लस एग्रीकल्चरल फैमिलीज, है ना, इनकी जो फैमिलीज हैं, क्योंकि ये फैमिलीज भी इन पर डिपेंड करती है, दैट्स व्हाई इट इज इन टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन. तो इनकी फैमिली मेंबर्स भी यहां पर आ जाएंगे. अब बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ. व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन ग्रोथ? पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब पॉपुलेशन का बढ़ना. सिंपल अगर इसका मीनिंग हम देखें तो पॉपुलेशन का बढ़ना, है ना. बट लेट मी मेक इट मोर क्लियर. पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स चेंज इन पॉपुलेशन, चेंज इन पॉपुलेशन इन ए स्पेसिफिक एरिया और टाइम, इन ए स्पेसिफिक एरिया और टाइम. ओके, किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना चेंज आ रहा है पॉपुलेशन के अंदर, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितना चेंज आ रहा है पॉपुलेशन के अंदर, वो होती है पॉपुलेशन ग्रोथ. ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ मे बी ऑफ टू टाइप्स आर देयर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. फर्स्ट वन इज natural growth and the second one is induced. First one is natural growth or second one is induced. Means the change in population may occur of due to these both factors, है ना. इन्हीं तरह इन दो तरह से हम पॉपुलेशन चेंज होती है, नेचुरल और इंड्यूस. पॉपुलेशन के अंदर इन दो तरह से चेंज आता है, नेचुरल केस में और इंड्यूस केस में. नेचुरल ग्रोथ कैसे होती है? क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट, है ना. इंड्यूस्ड तरीके से किस तरह से चेंज आता है ग्रोथ में? इन एंड आउट माइग्रेशन. इन एंड आउट माइग्रेशन अगर हो रहा है तो पॉपुलेशन के अंदर चेंज आता है. नेक्स्ट वी हैव phases of population change in India. Phases of population change in India means, what does it mean? It means the population, whatever population India has, so population के अंदर किस तरह से change आया, किस ट्रेंड से चेंज आया इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, सो देयर आर 4 phases. How many phases? The complete time period is divided in, it is divided in 4 phases. Population change का जो टाइम जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिवाइडेशन है, वो 4 फेज में हुआ है. ठीक है, द वेरी फर्स्ट फेज वी हैव 1901 to 1921. ओके, इसमें क्या देखने को मिलता है हमको? पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह की थी इसमें? Population growth was stationary. Population growth was stationary. Stationary means you can say बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं था. ठीक है, स्टेशनरी कंडीशन थी, स्थिर वाली कंडीशन थी. ओके, सो व्हाई द पॉपुलेशन ग्रोथ वाज स्टेशनरी इन दिस टाइम 1901 to 1921? रीजन क्या है? बिकॉज birth rate and death rate both were high.
दोनों ही क्या थी, हाई थी। बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही हाई थी, है ना। देखिए क्यों हाई थी बर्थ रेट और डेथ रेट, दोनों ही हाई क्यों थी, बिकॉज ऑफ स्टेशनरी क्यों थी कंडीशन, बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, बिकॉज ऑफ health and medical facilities. Health and medical facilities were lacking. There were poor health and medical facilities. Food distribution was not proper. Food distribution was lagging. है ना, इतना अच्छे से फूड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था। क्यों नहीं होता था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नहीं था, है ना, इलिटरेसी बहुत थी। इस वजह से जो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई थी। और ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 1901 टू 1921 फर्स्ट फेज के अंदर हमको नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ भी देखने को मिली है। 1911 टू 1921 ये जो बाद के 10 साल थे, इसमें हमको नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ भी हमको देखने को मिली है ना। द नेक्स्ट फेज वी हैव 1921 टू 1951, 1921 टू 1951 सॉरी। इसमें क्या हुआ, इस फेज के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर इंक्रीज हमको देखने को मिला। पॉपुलेशन ग्रोथ इस फेज के अंदर इंक्रीज हुई, बढ़ी इस ड्यूरेशन में। ओके, रीजन क्या था, बर्थ रेट हाई थी और डेथ रेट डाउन चली गई, डेथ रेट कम चली गई, यानी कि अब लोग कम मरे, इस ड्यूरेशन में कम मरे। क्यों हमको पॉपुलेशन इंक्रीज देखने को मिला, क्योंकि डेथ रेट कम हो गई थी। डेथ रेट को हमने कंट्रोल कर लिया था यहाँ पर, दैट्स व्हाई देयर वाज पॉपुलेशन इंक्रीमेंट। ओके, और क्या रीजन थे पॉपुलेशन इंक्रीज होने के, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज। हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर इम्प्रूवमेंट हो गया था। और क्या हो गया था, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के अंदर इंप्रूवमेंट हो गया था, है ना। और फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही हो गया था। ऑब्वियसली इफ आर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज स्ट्रॉन्ग, देन फूड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी विल ऑल्सो बी वेरी गुड। ठीक है, तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही हो गया, इट मीन्स लोगों तो खाना जल्दी पहुंचेगा, ज़्यादा पहुंचेगा, सफिशिएंट पहुंचेगा। और जब लोगों को एनफ फूडिंग मिलेगी तो ऑब्वियसली वो लोग ज़्यादा लंबे टाइम तक जिंदा रहेंगे। ओके, थैंक यू।